راؤ صاحب آپ کے لیے یہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں سوال. یہ ریئلائزیشن اب ایک گرو کر رہی ہے, جو 2-3 دن کی ہم نے ڈیبیٹس ڈسکشنز وہاں پہ سنی ہیں یورپین میڈیا پہ, خاص طور پہ DW پہ, اور DW کو آج اجازت دی گئی ہے, رشیا میں کھول دیا گیا ہے, اور RT کی ویب سائٹ بھی ابھی ہم نے چیک کی تھی وہ بھی کھل گئی ہے. So these are the signs کہ things are heading towards some kind of resolution. تو اب ریئلائزیشن یورپ میں یہ ہے کہ جو انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد اپنی ملٹری اور سیکیورٹی USA کے حوالے کر دی تھی, دیٹ واز اے مسٹیک. ایک gigantic power in the neighborhood like Russia with nuclear weapons and heavy military machinery, اس کے ساتھ اب now they have to think in a different way. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, is this the end of NATO or is this inching towards the end of European Union? کیسا لگ رہا ہے آپ کو, وہاں پہ کیا سچویشن بنتی ہے؟ دیکھیے اٹس ویری پری میچور ایٹ دس ٹائم کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ EU ختم ہو جائے گا, یا جو یورپین یونین کی ڈپینڈنس ہے آن یونائٹڈ اسٹیٹس وہ ختم ہو جائے گی, یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پاور ہے, انفلوئنس ہے اوور یورپ وہ مارجنلائز ہو جائے گا. اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس تھنگ. لیکن ہمیں کرائم دیکھنے چاہیے کہ کیا انڈیکیٹرز ہیں جن کے اوپر یورپ موو کر رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یورپین ویلیوز اور امریکن ویلیوز میں بہت فرق ہے. ٹرمپ سیز آئی ایم اے ڈیل میکر, اس نے کتاب بھی لکھی ہے اس معاملے میں ایک, کہ میں ایک سکسیسفل ڈیل میکر ہوں کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں, میں ایک تاجر ہوں, اور میرے گرینڈ پیرنٹس انتہائی غریب لوگ تھے, اور میں اپنی اسی اہلیت کی وجہ سے اپرچونٹی کو سیز کرتے ہوئے, ہر اپرچونٹی کو سیز کرتے ہوئے ناؤ آئی ایم اے بلینئر. اچھا, یورپ کی ویلیو سسٹم بھی ڈفرینٹ ہے, ان کے رویے بھی ڈفرینٹ ہیں, اور ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بھی قدرے ڈفرینٹ ہے فرام یونائٹڈ اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس از ویری فارچونیٹ کہ اس نے جنگ مین لینڈ پہ نہیں دیکھی سوائے سیکنڈ ورلڈ وار کے پہلے, جس پہ جاپان کا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا, اور اس کا خمیازہ جاپان کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا ایٹامک اینیلیشن کے لیے کی صورت میں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یورپ جو ہے وہ اس وقت اگر آپ ان کی پولیٹیکل کمپوزیشن دیکھیں تو وہ فار رائٹ کی طرف جا رہے ہیں. یورپ پولیٹیکل پارٹیز میں وہ لوگ آگے آ رہے ہیں, یا عوام انہیں لے کے آ رہے ہیں جو فار رائٹ, ان کے فار رائٹ جو ہر ملک کے الگ الگ ہیں. بائی دا وے یہ کوئی میں جو ٹرم استعمال کر رہا ہوں یہ پورے یورپ پہ یکساں ہم اپلائی نہیں کر سکتے. Far right political leaders, far right political parties are gaining momentum and they are carrying more weight, political weight, and they are on the reins in many countries. اور اس کے بعد ایک ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں فار رائٹ ایکسٹریمزم آ گیا ہے. میں یورپ کی بات کر رہا ہوں, جیسے مائیگرنٹس کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں. اب جب آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو امریکہ از ٹو بگ فار یورپ, اور اگر یورپ کا پورا آپ ڈیفنس بجٹ ملا لیں تو وہ بھی امریکہ سے کم بنتا ہے. میں صرف یورپ کی بات کر رہا ہوں, ویسے امریکہ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. تو آؤٹ رائٹلی تو یہ جو چیز ہے ان کی جو کہ چل رہی ہے فرام سیکنڈ ورلڈ وار, بلکہ میں تو فرسٹ ورلڈ وار بھی کہوں گا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار بھی تو امریکنس نے جتا کے دی تھی نا جی. لیکن چرچل اور امریکن پریزیڈنٹ کی آپس میں جو ایک جس کے اندر سارا ویپنز آئے تھے اور جس کے اندر ساری ایروپلینز آئے تھے, جس نے چرچل نے پھر چینج کر دی, تو سم ہاؤ امریکہ ریمینڈ سیویئر آف یورپ. اس میں اس کا بھی فائدہ تھا, یہ تو نہیں تھا کہ وہ مفت کر رہا ہے, اس نے پورا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. اب ٹرمپ جب یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو میں جو بائیڈن کے متعلق جو وہ لفظ استعمال کر رہا ہے اپنی ٹویٹس میں, میں پڑھ دیتا ہوں دلچسپی کے لیے دوبارہ.
Sleepy जी Joe Biden didn't Sleepy Joe Biden. मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ जो उसने तकरीरें की हैं, या जो मेरे कई वाकिफ हैं जो कि उस फैमिली के नज़दीक हैं, उनके साथ जो वो डिस्कशंस होती हैं, वो बड़े डेरोगेटरी लफ्ज इस्तेमाल करता है अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। अच्छा, अब साइकी भी डिफरेंट आ गई अमेरिकन की, मसल पावर भी उनकी डिफरेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर पावर भी डिफरेंट है। तो वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि मैं आई एम अमेरिकन फर्स्ट, मैंने अपना फायदा देखा, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनी अदर कंट्री। और दूसरे मुल्कों के जो उसने लीडर्स बुलाए भी थे, उससे भी उसने अपने बिजनेस डील्स की मुतल्लिक बात की है। अब कीप इन माइंड कि ट्रंप इज अ वेरी वेरी गुड डील मेकर, ये आप जहन में, जी और वो जी इसको बुरा नहीं समझता, वो इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ समझता है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी समझता है, एंड ही इज एंटी वॉर, साइमल्टेनियसली ही इज एंटी इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कि ये आपकी बात से समझ आ रही है कि इसीलिए वो अब ट्रम्प साहब की नजरें तो यूक्रेन के रिसोर्सेज पे हैं कि ये ठेका हमें दे दे, तो बंदर बांट हो गई ना नहीं, यूक्रेन की। मैं देखिए, इतना आसान नहीं है कि मैं एक जजमेंट बिल्कुल कंक्लूड कर दूं कि रिसोर्सेज है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, जिसमें रिपोर्टेडली बहुत करप्शन हुई है, लिहाजा हमारे पैसे वापस करो। यूक्रेन तो पैसे वापस नहीं कर सकता, तो वो पैसे क्या नहीं है देगा? तो कोई वो उसके बदले। मिनरल्स देगा, डेफिनेटली वही देगा, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बात आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब हेड ऑफ स्टेट्स के ताल्लुकात आपस में बहुत बेहतर हों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो। ट्रंप और पुतिन की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये भी बात थी कि जो रशिया कह रहा है वो माना जा रहा है, नॉट लाइक दिस। रशियंस आर फेसिंग, अभी 3 मुल्क हैं ईस्टर्न यूरोप के जिन्होंने रशिया से बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, एंड दे वर रशियन portion, they were Russian states initially. ट्रंप की प्रायोरिटी आप ऑर्गेनाइज करके देखें तो सिर्फ एक है, जंगे खत्म करो, अमेरिका को मजबूत करो, और असल दुश्मन चाइना है। दिस असल इज दुश्मन हिज। है और असल मसला पैसों का है, पैसे हैं नहीं, ये है असल मसला। पैसे सर इतने वो हमारे जैसे नहीं है कि पैसे बिल्कुल अरे उनके पास खत्म हो जाए। किस स्टैंडर्ड से, जरा चलिए एम्बेसडर साहबा की तरफ चलते हैं। एम्बेसडर साहबा, ये जो यूरोप की सिचुएशन है, ये 23 तारीख को जर्मनी में इलेक्शंस होने हैं। जर्मनी के इलेक्शंस में जो डोमिनेंट फैक्टर रहा है वो एनवायरनमेंट का रहा है। जो उनका लेफ्ट राइट और सेंटर है, वो तो इसके ऊपर वहां पे सारी डिबेट होती रही है उनकी पॉलिटिक्स में। अब ये कोई नई चीज एंटर होने जा रही है, आपको लगता है? लेट्स सी, वी आर जस्ट 3-4 days बिहाइंड दोज इलेक्शंस। तो उनकी भी बात कीजिए जरा, और बाल्टिक स्टेट्स के बारे में, क्योंकि अब उनके बारे में खतरा जाहिर किया जा रहा है कि रशिया उनको हड़प कर जाएगा। और जिस तरह की बात की निशानदही अभी राव साहब फरमा रहे थे कि जैसे वो डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने ओपोनेंट्स के बारे में, वैसे अल्फाज मैंने खुद सुने कुछ यूरोपियंस को बाल्टिक्स के लिए यूज करते हुए, कि वो, अब मैं क्या कहूँ। तो जरा इस हवाले से बताइए कि ये वहां पे क्या, व्हाट इज द इमर्जिंग पिक्चर देयर? देखिए, सबसे बड़ी जो इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न है ना, वो इकोनॉमी है। आपको याद होगा कि जर्मन चांसलर जो हैं चीन भी गए, और उन्होंने वहां भी जो है कोशिश की, जब ऑयल एंड गैस के सैंक्शंस हो गए थे रशिया के ऊपर। फिर फोक्सवैगन ने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट की चाइना में, बिकॉज उस वक्त जो था लेबर इतना नहीं था। अब मुश्किल ये हो गई है कि फोक्सवैगन को जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि चीन में जो गाड़ियां बन रही हैं अब वो यूरोपियन गाड़ियों को compete कर रही हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो दे फील थ्रेटन्ड। तो ये चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो यूके है, हालांकि यूके तो ब्रेक्सिट में हो चुका था, पर यूरोपियन कंट्री तो फिर भी है, इनकी इकोनॉमीज को सबसे बड़ा थ्रेट है।
दूसरा आप देखिए कि जब आप ये वाइस प्रेसिडेंट वैंस की बात कर रहे थे, तो एक तो उन्होंने वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की थी, दूसरा उन्होंने जब सिक्योरिटी की बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना हिस्सा इसमें बढ़ाएं। अब तक अगर आप देखें तो नेटो में यूरोपियन कंट्रीज 5% सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब तक तो अमेरिका बोझ उठाता रहा, जैसे राव साहब ने फरमाया, इट हैड बीन अ सेवियर वेदर इट वाज वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और सब्सिक्वेंटली। लेकिन अब ट्रंप का है कि हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे, अगर आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए तो आप अपना बोझ खुद उठाना सीखें, जो कि इस वक्त कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा डिजाइन हुआ था जो कि अमेरिकन ओरिएंट था। अब यूक्रेन को उन्होंने क्यों इतना नीचे किया? मेरे ख्याल में क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी थी कि यूक्रेन के थ्रू वो प्रॉक्सी वार रशिया से खेलना चाह रहे थे, तो यूक्रेन टेक ऑन कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज भी और बाइडेन हुकूमत भी, और बहुत ज्यादा वो पैसे वहां दे रहे थे कि ये जंग लड़े। वो रूस के साथ बेसिकली प्रॉक्सी वॉर कर रहे थे। ट्रंप ने सेड नो नॉनसेंस, यूक्रेन तो अपनी तो उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है, ये तो प्यादा है इन लोगों का, तो इसलिए उसने ज़ेलेंस्की को डिग्रेड किया। लेकिन जहां बल्कन्स की बात कर रही हैं, आप देखें ज़ेलेंस्की जो है वो अर्दोगान से जाके मिला है, तो तुर्की का क्या रोल है आप देखें ना। और आफ्टर भी था ना वो सारा इलाका इनके। exactly after the conclusion of Treaty of Lausanne, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा ट्रीटी ऑफ लोज़ैन से गया था, वो ट्रीटी अब खत्म हो चुकी है। सो टर्की हैज अ न्यू रोल टू प्ले। आप देखिए सीरिया में भी तुर्की कामयाब रहा, और अब इधर भी तुर्की का एक रोल जो है वो सटली विजिबल हो रहा है। सो एक तरफ आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एक रोल प्ले कर रहा है, होस्ट कर रहा है इन टॉक्स को, which is basically a tribute to the success of MBS's diplomacy. But it needs to be seen कि किस हद तक ये डिप्लोमेसी आगे चलेगी, क्योंकि आपने देखा कि किंग अब्दुल्ला भी गए यूएसए, और उनको भी कोई वहां ज्यादा खुशी से वापस नहीं आए। कहा गया कि तुम लोगों ने फलस्तीनियों को एकोमोडेट करना है, गजा को खाली करना है। सो अब जो है इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर जो उस वक्त अब्राहम एकॉर्ड हुआ था। यस, अब उन्हीं ममालिक के लिए आप बात वहां ले आई है जहां पे मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था, इसी से जुड़ा हुआ। ये जो भी अभी पिछले महीने होके आया है वॉशिंगटन, वो कुछ नहीं आया है, वहां से कुछ ऐसी फरमाइशें कर दी जाती हैं। तो ये जो रियाद में हो रहा है, इसका आपको लगता है कि ये इजराइल के मामले से भी कोई ताल्लुक है? ये तो अभी बड़ी मुखालफत कर रहे थे, यही एमबीएस अमेरिका की वो सारे प्लान की इनको डिस्प्लेस करने की पैलेस्टीनियंस को, अब उनके घर में बैठ के ये मीटिंग हो रही है। सो व्हाट इज कुकिंग एक्चुअली? आई थिंक लॉट इज कुकिंग, यू कैन ओनली स्मेल इट। जब तक डिश सामने नहीं आती है यू डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन आई थिंक लॉट इज कुकिंग राइट नाउ। यस, बट देखिए लिंक्स तो एस्टैब्लिश होते हैं ना चीजों के, कि परसों तक तो आपको नहीं पता तो आप बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो क्या निगोशिएशंस हो रहे हैं, अब्राहम एकॉर्ड क्या नया रंग दिया जाएगा। अगर गजा को इन्होंने साफ करना है तो उसमें जो उधर रीजनल कंट्रीज हैं वो किस तरह से एक नया डायनामिक जो है वहां इमर्ज होगा। सऊदी अरेबिया ने अपेरेंटली तो कह दिया कि दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन अब आपने देखना है कि सीसी साहब किस तरह से डील कर रहे हैं, किंग अब्दुल्ला किस तरह से कर रहे हैं, सीरिया किस तरह से कर रहा है, यमन में किस तरह से हो रहा है। और तीन आप देखिए कि उन्होंने पैनामा का काउंटर एक और कैनाल बना ली है। जब यूएसए ने कहा है कि पैनामा हमारा कंट्रोल हम वापस ले रहे हैं, चीन ने एक नई कैनाल खोद ली भी है। सो दे आर नॉट बॉदर्ड
Americans control Suez or not, or Panama Canal or not. अब चीन ने अपना ऑल्टरनेटिव तो चीन ने पहले ही कह दिया था, because they were mentally prepared. So they told them कि अगर तुम हम पे टैरिफ्स लगाओगे हम कहीं और ट्रेड कर लेंगे, you will be the loser. रास्ते अगर रोको हम और रास्ते निकाल लेंगे, you will be a loser. अब आप देखिए कि वो जो पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूरोप के थ्रू एक ट्रेड पाथ अमेरिका बनाना चाह रहा था, वो उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं. क्या वो BRI का काउंटर बन सकेगा? So there are a lot of things happening right now.